Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 16 September 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. But before we move on to the articles of the day, आज का जो डेट है 16 September, इस दिन को हम मनाते हैं as the World Ozone Day. तो इसके बारे में जल्दी से कुछ important information जान लेते हैं. So let us see why is it celebrated on 16 September? Because हमने साइन किया था a very important document called as the Montreal Protocol in 1987. तो यहाँ पे every year, that is why celebrating it as Ozone Day on 16th September itself. Now what was the Montreal Protocol about? यहाँ पे हम जो ozone depleting substances हैं इसको phase out करना चाहते थे, इसको ban करना चाहते थे. इस साल का जो theme है, we are seeing it is from science to global action. This is the theme of this year. You should know this. Now let's understand some basics. Ozone क्या होता है? We'll also see with regard to the various agreements based on ozone. So firstly, ozone layer की बात करें, हमारे जो अर्थ के एक लेयर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओजोन एंड दिस लेयर इफ यू टॉक अबाउट इज इन अ स्ट्रेटोस्फीयर. सो इफ आई टॉक टू यू अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो हमारा जो 0 किलोमीटर से लेके go up, okay, in the average of 12 kilometers you have the troposphere. This is called as the ground level. फिर आता है stratosphere, okay, the next level. Then is mesosphere, thermosphere and exosphere. तो जो ओजोन लेयर की हम बात कर रहे हैं, this is located in the stratosphere. तो ये जो stratosphere में जो ओजोन लेयर होता है, so that is helping it, O3 जो है, it is helping the earth from the UV radiation, absorb करता है ये harmful UV radiation. अभी ये UV radiation क्या है? This is the one that causes various types of cancers, cataracts, also not good for the environment, crop loss, forest degradation, marine life. इसके लिए ये बहुत harmful है ये UV radiation. So this is like a blanket that protects the earth from the harmful radiation to come inside, to penetrate inside. बट अभी प्रॉब्लम क्या है? मैन मेड सब्सटेंसेस की वजह से ये जो ओजोन लेयर है, ओके, ये डिप्लीट हो रहा है. सो द यूवी रेडिएशन कैन देन पेनिट्रेट. नाउ व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज दिस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसको हम ओडीएस कहते हैं. सो वी हैव गॉट वेरियस लाइक सीएफसीज की बात करें, राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द वंस दैट आर मेनली गिवन आउट through the help of refrigerators, ACs, aerosols, coolants. इनके वजह से ये emit होते हैं और ये emitted वाले जो molecules हैं, they are called as ozone depleting substances. तो इसको बंद करने के लिए we saw two important protocols and conventions. पहला वाला था 1985 में, जो वियना कन्वेंशन कहते हैं. We talked about कि हम सभी countries वर्क करेंगे so that we stop these ozone depleting substances. The second convention that came or the protocol is called as Montreal Protocol. Now remember, ये एक binding agreement है. ये जो Montreal Protocol है, binding agreement है, जहाँ पे हमने कहा कि we will phase out these completely, इसको बंद करेंगे. So ये 1987 में इसका साइनिंग होता है. Now understanding इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है. So we have been a signatory to the Montreal Protocol since the year 1992 और हमने फेज आउट भी किया है. 2010 में we've completely phased out the chlorofluorocarbons, the carbon tetrachloride, okay, halogens, methyl bromide. These all are ODS, ozone depleting substances. तो यहाँ पे examples हम देखते हैं. इंडिया ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है called as the India Cooling Action Plan. ये 2019 का है, जहाँ पे ये चाहते हैं, because your ozone depleting substances are mainly emitted from these coolants, these refrigerators, these ACs, right? एयर कंडीशनर्स. तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये कूलिंग डिमांड कम हो. Some other alternatives मिले to refrigerants, efficiency बढ़ाए हैं with regard to even technology improve करें, as well as aligning the government's the programs for socio-economic and environment benefits, ताकि वो environment को disrupt ना करे, harm ना करे.
फर्दर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी एक अमेंडमेंट आया जिसका नाम है किगाली अमेंडमेंट। नाउ रिमेंबर किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा। तो किगाली अमेंडमेंट जो आया था 2016 में, ठीक है। नाउ इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या टारगेट है, ये जान लेते हैं। सो आई टोल्ड यू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज फॉर व्हाट, इट वाज फॉर फेजिंग आउट ऑफ दीज HF6, ओके, दैट CFCs, इसको सब बंद करना था। नाउ इसको बंद करने के लिए वी एडेड अ सब्स्टिट्यूट, वी स्टार्टेड यूजिंग अनदर कूलेंट, ओके। सो दिस कंटेन समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, यानी कि हमने क्लोरोफ्लोरो बंद किया पर हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज किए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। नाउ दैट इज नॉट डिप्लीटिंग द ओजोन बट इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस है, मतलब ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और हमारे ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पे इट काइंड ऑफ एनहांसेस, इट काइंड ऑफ मेक्स द सिचुएशन वर्स। सो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस HFCs। So that is why Kigali amendment आया और उन्होंने बोला ठीक है, now that you've eliminated this, you also have to eliminate HFCs। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी एलिमिनेट करना है, ये किगाली अमेंडमेंट का टारगेट है। So 2016 में आया ताकि HFCs को बंद करें and this is mainly starting from 2032, ये इंडिया ने भी टारगेट बताया है। Now world target, when are we planning to phase it out completely? The phasing out will be 80 to 85% हम कम करेंगे by the late 2040s. By late 2040s, we are going to eliminate HFCs at least 80 to 85%. तो ये हमने देखा किगाली अमेंडमेंट। नाउ देयर इज ऑल्सो ओजोन प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर। अभी ट्रोपोस्फियर वी जस्ट सॉ यहाँ पे इन द ग्राउंड लेवल, इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। एंड रिमेंबर ozone in the stratosphere is good ozone because this is helping us prevent the UV radiation to come inside, but जो troposphere, जो ground level में ozone है, that is harmful for the environment. Now let us understand about this ground level ozone जिसको हम bad ozone कहते हैं या ground level ozone कहते हैं। Now this is mainly a short lived chemical pollutant, यानी कि वो कुछ घंटे के लिए रहता है और even 2 weeks. Now it is not formed directly, ये ओजोन यहाँ पे शामिल नहीं है, इट इज फॉर्म बाय अ रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा होता है, जब जो सनलाइट अंदर आ रहा है इट रिएक्ट्स विद द VOCs। VOCs आर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे आपके पेंट्स, जो ऑटोमोबाइल फ्यूल्स होते हैं, जो यू विल गेट दैट स्मेल, राइट। सो ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक you can say compounds होते हैं, ये वेपर के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं when at room temperature, so that's why it's called as volatile, it changes its phase, right? So ये methane is an example with regard to VOCs। या NOx क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। so नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है। so when sunlight is reacting with the VOCs or NOx, that is when the ozone is formed, okay। now ये जो materials हैं VOC और NOx, ये कैसे मिलता है एटमॉस्फेयर में, that is because of human interventions, जैसे कि vehicle pollution, power plants, industries, इनके वजह से ये जो compounds होते हैं they are emitted in the environment which leads to this bad ozone। so ये harmful कैसे है, this is harmful to the health, to vegetation, to climate, okay। so यहाँ पे अगर आपको इसको कंट्रोल करना है, you need to ensure कि ये कम हो, the methane emissions, the car emissions, power plant, industries, all that needs to be curtailed, because if at all this remains, O3 remains, जो ground level पे जो tropospheric ozone रहेगा, then this will lead to ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जैसा बिहेव करता है, यानी कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है ये बढ़ेगा। सो इसके लिए एक और प्रोटोकॉल आता है called as the Gothenburg Protocol। Remember जो मॉन्ट्रियल, किगाली और सब हमने किया था वियना, that was for the stratospheric ozone, right? तो ये गोथेनबर्ग किसके लिए है, this is for ground level ozone। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन सा
प्रोटोकॉल या कौन सा अग्रीमेंट है. सो दिस इज कवरिंग ऑल द सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अमोनिया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसको ये कवर करता है कि इसको ये बंद किया जाए. सो 2012 में we ensured, we also added particulate matter. So to these lists we also added PM, PM 2.5, PM 10, black carbon, और हमारे कमिटमेंट्स है कि इसको हम फेज आउट करें, इसको हम कम करें, सो दैट दिस इज नॉट पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट. तो ये पूरा हमने आर्टिकल कवर किया है ओजोन के बारे में. वेरी round kind of say proper discussion, a brief discussion for the same, so you have notes prepared for this. Let's now proceed to the next article, और this is regarding the Waqf Act. Now we know that Waqf के लिए एक पोर्टल भी बनाया है. We've already discussed about Waqf this whole year through. तो आपको मुझे इस Waqf के पोर्टल का नाम comment section में बताना है. Okay, so this is it's like a short form of a new name given to Waqf. Okay, to the Waqf Act. So please write that in the comment section. Now let's understand what exactly is this. So जब Waqf Act अमेंड होके आया 2025, जो पुराना एक्ट है इट वाज 1995. ओके, तो इसको अमेंड करके हमको एक्ट मिलता है 2025 में. नाउ व्हेन दिस एक्ट वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, वी सॉ नंबर ऑफ प्रोटेस्ट पिटिशंस साइन हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, एंड दे सेड कि यू नीड टू स्टॉप दिस. सो कुछ कम्युनिटीज यहाँ पे प्रोटेस्ट करी. Now ये जो पिटिशंस को स्टडी करके या इसको देख के सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन यानी सितंबर 15 को a bench that was led by our own Chief Justice of India B.R. Gavai and Justice A.G. Masiha, so इन्होंने एक ऑर्डर पास किया. So we're going to understand the order related to the Waqf Act. इसमें यहाँ पे उन्होंने पूरे एक्ट को, वक्फ एक्ट को स्टे नहीं किया, बट कुछ सेक्शंस ऑफ द एक्ट को यहाँ पे स्टे कर दिया है, एंड द अदर पार्ट इज कंटिन्यूड. ओके, सो ये कौन से चीजें को स्टे किया है ये हम देखते हैं. ओके, एंड कौन से चीजों को कंटिन्यू किया है विच आर नॉट सस्पेंडेड ये हम देखेंगे. फर्दर पिटिशन जो आया था, ओके, विद रिगार्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, अंडर व्हाट आर्टिकल दैट दे फाइल, इट वाज अंडर आर्टिकल 26 व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट. तो आपको राइट टू रिलीजन पता है, दैट्स आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट कि यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस योर ओन रिलीजन. नाउ आर्टिकल 26 ये कहता है जो रिलीजियस कम्युनिटीज है दे हैव द राइट टू मैनेज देयर ओन रिलेशन. सो जैसे मैं अपना रिलेशंस मेंटेन करना चाहती हूँ, मेरी रिलीजियस कम्युनिटीज के पास इतना पावर है to manage, so the state or the government cannot interfere in the religious matters. ये कहता है article 26. So let's quickly see now what is waqf and what are the changes that are allowed and stayed. ये सब हम देखें. सो वक्फ का मतलब क्या है? दिस इज अ परमानेंट एंडाउमेंट. जैसे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बी इट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, एंड दिस इज गिवन इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ गॉड, ओके, बाय शरिया लॉ दैट वी टॉक अबाउट, इस्लामिक लॉ. ओके, और ये जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं दैट कुड बी फॉर एनी रीजन. इट कुड बी मेनली एक मदरसा ओपन कर रहे हैं या एक मॉस्क या एक ग्रेवयार्ड. सो कोई भी लैंड जो है इट इज given in the name of Islamic law for as a religious or a charitable endowment. इसको बोलते हैं वक्फ. So इसको सुपरवाइज करने के लिए we have something known as मुतवल्ली. I'll just write it here. Mutawalli. So Mutawalli is the one that mainly ensures or supervises the waqf. Now एक बार आपने वक्फ दिया है, okay, you cannot sell it, you cannot gift it to somebody or you cannot inherit it. ये आपने एक बार दे दिया वक्फ property, it is declared as a waqf property, it remains as a waqf property. So that is what waqf is. So to avoid misuse of waqf, to avoid encroachment of lands and misuse of it, इसीलिए government has brought about a law amendment to the law. So we're going to quickly see. So अभी हम जानते हैं firstly कुछ चीजों को स्टे किया है, कुछ प्रोविजंस को स्टे किया है. स्टे का मतलब है इसको यहाँ पे we have suspended this. Okay, suspended.
Alright, and we are also going to see some provisions that are not stayed, मतलब जिसको continue किया जाएगा. So यहाँ पे in provisions will be continued. So first shall we see the provisions that are continued and then we will see provisions that are stayed. Okay, so firstly continue कौन सा किया जाएगा? Abolition of वक्फ by user. So 2025 एक्ट कहता था कि जो वक्फ बाय यूजर, अर्लियर वक्फ बाय यूजर वाज अ कॉन्सेप्ट जहां पे एक बार तुमने ये प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया है, ठीक है, और इट वाज कंटिन्यूड एज अ वक्फ, यू कुड नॉट चेंज इट. फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक जगह पे एक स्कूल है, मदरसा है, तो मान लो कि 20-25 इयर्स के लिए दिस वाज a school only, so then it will be continued as a school. कोई पूछेगा नहीं कि ये क्या, ये स्कूल है कि नहीं है, जो इसका ओरिजिन, ये सब कुछ नहीं होगा. So that was वक्फ by use. तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट 2025 में इसको बंद किया था, बिकॉज इससे क्या होगा, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट, इंक्रोचमेंट हो सकता है. सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज नो रीजन टू स्टे दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ओके, नो रीजन टू स्टे. सो यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया जाएगा विद रिगार्ड टू अबॉलिशन ऑफ वक्फ. ये जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं होगा. यू नीड टू चेक एंड टेल कि ये क्यों वक्फ प्रॉपर्टी है. ओके, यू नीड टू हैव प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर इट. इसीलिए ये जो अबॉलिशन ऑफ वक्फ बाय यूज, it's continued, it is allowed. Okay, the second thing is applicability of limitation act. Now what is limitation act? Limitation is when कोई मान लो एक लैंड है जहाँ पे एक let's say some sort of a mosque is there, okay, or maybe some sort of a graveyard है. तो in that case a वक्फ जो है, इन पे एक लिमिटेशन नहीं होता था. सो दे कैन इजीली फाइल कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है. ओके, दे कैन इजीली गो एंड से हाँ दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी. सो एनी एरिया दे कैन क्लेम कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है. नाउ व्हाट हैपेंड इज 2025 एक्ट ने उन पे एक लिमिटेशन पीरियड लगाया. मतलब यू कैन जनरली क्वेश्चन एटलीस्ट 12 years फॉर अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इट्स नॉट लाइक कि आप पूछ ही नहीं सकते. सो यहाँ पे एक लिमिटेशन पीरियड लागू किया था मेनली बाय द 2025 एक्ट, लाइक टू क्वेश्चन की इज इट अ वक्फ प्रॉपर्टी. इट इज नॉट. द वक्फ बोर्ड्स नीड टू डू इट बिफोर द लिमिटेशन पीरियड. ओके, सो नाउ सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये तो ठीक है, बिकॉज ये जो लिमिटेशन पीरियड की हम बात कर रहे हैं दैट अप्लाइज टू अदर बोर्ड्स ऑल्सो, रिलीजियस बॉडीज, अदर ट्रस्ट, इनके लिए भी लागू होता है. सो दिस इज अ इक्वालिटी प्रिंसिपल जहां पे सबके लिए सेम है. सो इसीलिए जो लिमिटेशन एक्ट है इट इज फॉलोड, इट इज कंटिन्यूड फॉर वक्फ. सो दीज आर द प्रोविजंस दैट आर कंटिन्यूड. ओके, नॉट स्टेट कंफ्यूज हो सकता है, तो याद रखना ये कंटिन्यूड है. Now which of them are stopped by the Supreme Court, ये देखते हैं. So stopped और suspended वाले ये देखते हैं. So firstly इन्होंने कहा था कि there should be non-Muslim representation, but यहाँ पे Supreme Court ने कहा कि ठीक है non-Muslims is fine, but you should have a minimum number. You can't have majority non-Muslims, right? So ये number Supreme Court ने बताया है. We will quickly see which is it. Central Waqf Council 22 members के लिए minimum जो maximum आप 4 members non-Muslims कर सकते हैं. Further स्टेट वक्फ बोर्ड्स के लिए एटलीस्ट मतलब 3 मैक्सिमम नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं. सो अगेन कीपिंग द राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इंटैक्ट, यहाँ पे ऐसा राइट्स दिया है. एंड ऑफ कोर्स वॉइसिंग ओपिनियंस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस आल्सो, इसीलिए यहाँ पे वी सी दैट इट इज मोर इंक्लूसिव इन इट्स नेचर. Second one, 5-year Islamic practice. Okay, so now we are seeing something that is suspended. ओके, तो यहाँ पे सस्पेंड क्या किया है? सस्पेंड किया है कि अर्लियर इन 2025 एक्ट ऐसे बोला है कि कोई भी इंसान वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर तभी कर सकता है जब उसने इस्लाम 5 साल के लिए मिनिमम प्रैक्टिस किया है. ओके, तो ये 2025 एक्ट ने बोला कि 5 years होना चाहिए. बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये सस्पेंड करेंगे टिल वी फाइंड कि व्हाट आर वी रूल्स ऑन वेरिफिकेशन. तो ये 5 years का जो यहाँ पे आपने क्लॉज लिया है ये अभी सस्पेंड किया जा रहा है. ओके, सो दैट्स लाइक आर्बिट्री सेइंग ओके आई एम प्रैक्टिसिंग, व्हाट इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस, ऑल दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन. सो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इसको हम सस्पेंड करते हैं. तीसरा चीज जो सस्पेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन द वक्फ एक्ट ऑफ 2025 इज इन सेक्शन 3C.
जो कलेक्टर का पावर के बारे में बताता है। नाउ कलेक्टर अकॉर्डिंग टू द 2025 एक्ट कुड चेक कि कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट लैंड है कि क्या है, ये कौन चेक कर सकता है? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट। सो प्रॉपर्टी वक्फ स्टेटस लूज भी कर सकती है अगर ये इंक्वायरी स्टार्ट की तो। So imagine XYZ is a collector. Once he starts an inquiry if this is a वक्फ property or not, inquiry के टाइम में भी इसको सस्पेंड किया जाता है, but that is not fair, right? Because ये directly alter कर सकता है वक्फ रिकॉर्ड। So that is where सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इसको हम सस्पेंड करते हैं, ठीक है। इसका जो वक्फ का स्टेटस है that will still remain intact unless final rules कहें है कि नहीं। सो दैट अगेन रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट डायरेक्टली डिसाइड कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं। सो टिल द इंक्वायरी इज कंप्लीट इट विल स्टिल रिमेन एज अ वक्फ। सो दिस इज व्हाट द 3 थिंग्स दैट हैव बीन सस्पेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जो जो सस्पेंड हुआ, जो जो स्टे लगाया है, यानी कि समथिंग दैट विल कंटिन्यू, ऑल दिस वी हैव सीन। Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल है इंडिया को लाइसेंसेस मिलता है to mainly to scour Indian Ocean for precious metals. Let's understand what is this article all about. So हमको पता है हमारे पानी के एकदम नीचे, okay, on the sea bed जिसको कहते हैं, we find a number of precious metals like manganese, like nickel, like cobalt, बहुत सारे ऐसे polymetallic nodules कहते हैं इसको। Now these nodules अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज देम इन कंप्यूटर्स, वी यूज देम इन ईवीज, वी कैन यूज देम ऑन इन एनी टेक्निकल फील्ड में, एनी अपकमिंग बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्सेज में हम इन मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो वी अंडरस्टैंड दीज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री फॉर देयर डेवलपमेंट। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जितना एक्सटेंसिव जो ओशन है उनमें हम ये छानबीन कर सकते हैं, यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। तो हमको ये माइनिंग करने के लिए कुछ यहाँ पे परमिशंस लेनी पड़ती है। तो किससे परमिशन लेनी है? बिकॉज ये जो ओशंस है ये सबका होता है। सो एक बॉडी होती है कॉल्ड एज ISA, दैट्स द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जिससे हमको परमिशंस लेना पड़ता है। और जब ये परमिशंस दिए जाते ग्रांट करते हैं तो ही हम ये एक्सप्लोरेशंस कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि अभी ये कौन सा परमिशन लिया है, व्हाट आर द मटेरियल्स दैट वी गॉट, ये क्विकली हम देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद जो हमने पूछा है इंटरनेशनल सीबेड से किस मिनरल के लिए हमने पूछा है। सो वी वांटेड टू गेट द पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स, ओके, पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स जिसमें रिच वेरिएंट्स होते हैं, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, इन सब चीजों का ये एक पूरा मिश्रण होता है, लाइक कॉन्सेंट्रेशंस होता है। सो दिस इज लाइक द फर्स्ट ग्लोबल लाइसेंस जो हमको मिला है। हम कहाँ पे छानबीन करेंगे, अभी एक्सप्लोर कहाँ पे करेंगे? कार्ल्सबर्ग रिज, ओके, कार्ल्सबर्ग रिज, दिस इज इन द इंडियन ओशन। सुना होगा ये नाम आपने, probably like a brand or something which I don't want to name, but ये क्या है जल्दी से हम देखते हैं। So this particular छानबीन एक्सप्लोरेशन हम कहाँ पे करेंगे? We're doing it in the northwest Indian Ocean. So if I have to show you the picture, यहाँ पे मान लो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड ऑल, सो यहाँ पे there is Carlsberg Ridge. So you can see यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे एशिया है. You'll find that in a boundary between Indian and जो plates है, of course you can say Asia and Africa, or you can also say the tectonic plates, जो plates होते हैं deep under Indian and Arabic tectonic plates का boundary है Carlsberg Ridge. Now we can also understand what is a ridge. Ridge is like a highland in the water, okay, जहाँ पे थोड़ा जैसे mountainous region एक aspect होता है, जहाँ पे we find a little highland, okay, मतलब थोड़ा उबर के आता है ये. So this is mainly from Rodriguez Island to the Owen Fracture Zone. So this is where the Carlsberg Ridge is, which is a 3 lakh square kilometer stretch. और as you can see कहाँ पे exactly है, ये कौन सा Indian Ocean है, but this is sea that we have the Arabian Sea, and it is in the northwest. So now we're going to see International Seabed Authority. Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको permission पूछनी पड़ती है if we want to explore minerals, mineral exploration के लिए. And mineral कहाँ पे explore कर रहे हैं? अगर हम high seas में explore कर रहे हैं, अभी high seas क्या होता है? Those regions that are beyond our national jurisdiction, यानी कि 200 nautical mile के बाद
अगर हमको एक्सप्लोर करना है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड करना है, तो इट्स कॉल्ड एज हाई सीज एंड वी हैव टू आस्क परमिशन फ्रॉम द ISA। तो यहाँ पे 19 कंट्रीज करेंटली इनके पास राइट्स हैं टू एक्सप्लोर। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है ISA का? इट्स इन किंगस्टन विच इज इन जमैका। एंड ये कब आया था? इट केम इनटू फोर्स इन 1994 जब UN क्लॉज फोर्स में आया था। सो UN क्लॉज इज द एक्चुअल लॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द वाटर्स। ओके, जैसे UN है विद रिगार्ड टू लैंड, यहाँ पे सीज के लिए सेपरेट एक UN क्लॉज है जो 92 में आया था, लेकिन 94 में इट वाज एनैक्टेड। तो कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे? देयर आर टोटल 168 मेंबर्स। इंडिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, एंड जो कंट्री ने रेटिफाई करता है, लॉज लेके आता है UN क्लॉज, वो ऑटोमेटिकली बनता है ISA का मेंबर। सो देयर इज नो सेपरेट परमिशन टू जॉइन ISA। वंस यू आर अ मेंबर ऑफ UN क्लॉज, you become a member of the ISA। तो अराउंड 54% जुरिस्डिक्शन होता है इस पर्टिकुलर ISA लुक्स आफ्टर 54% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस। नाउ इंडिया ने दो चीजों के लिए अप्रूवल पूछा था, परमिशन दो चीजों के लिए पूछा था, बट एक के लिए हमको मिला है। सो विच आर द टू थिंग्स? फर्स्टली कार्लसबर्ग रिज, तो ये तो अलाउड है। दूसरा वाला है द अफानासी निकेतिन। ओके, अफानासी निकेतिन सी, जो सेंट्रल इंडियन ओशन है। ओके, सो इट्स मेनली समवेयर हियर। ठीक है, नाउ इस पे पेंडिंग अभी भी अप्रूवल, तो इसका अप्रूवल हमको नहीं मिला। इनफैक्ट दूसरी कंट्री भी यहाँ पे चाहती है कि वो भी एक्सप्लोर करे, दैट इज श्रीलंका। सो अंडर UN क्लॉज हम कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं? इट इज अलाउइंग अप टू 350 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, 350 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, इतना ये क्लेम कर सकती है। बट बे ऑफ बंगाल में 500 नॉटिकल माइल्स तक हमको मिला है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू इंडिया के राइट्स। फर्दर, इससे पहले क्या हमको परमिशन मिला है? द आंसर इज यस, वी हैव गॉट परमिशन फॉर द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। ओके, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के लिए 2002 में ये कॉन्ट्रैक्ट आया था, एंड ये वैलिड है 2027 के लिए। ओके, सो वैलिड टिल 20, एक्सटेंड बहुत बार किया हमने। सेकेंड इज इंडियन ओशन रिज में भी है, एंड दिस इज फॉर पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स। व्हेयरएज 2016 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इट इज वैलिड फॉर 15 ईयर्स, अबाउट 2031। इनफैक्ट ये जो अफानासी निकेतिन सी है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज लाइक, यहाँ पे जैसे मैंने कहा पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स, राइट? तो यहाँ पे जो कोबाल्ट, ओके, कोबाल्ट रिच फेरेनियस मेटल्स यहाँ पे मिलते हैं। सो दैट इज वेयर वी वर वांटेड टू एक्सप्लोर, पर अभी परमिशन बाकी है। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू द इंडियन ओशन एंड दिस सी एक्सप्लोरेशन। लेट्स क्विकली नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वी आर सीइंग सुप्रीम कोर्ट ऑन एंटिसिपेटरी बेल इन द कास्ट क्राइम। सो वील फर्स्टली सी एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, एंड ये कास्ट क्राइम्स में इज इट अलाउड, नॉट अलाउड, ये देखते हैं। Okay, now what is anticipatory bail? यहाँ पे कोर्ट के पास कोर्ट ऑर्डर होता है which allows a person to be released on bail before he is arrested. तो यहाँ पे आप जाके if a person goes to the court and says that okay I require this bail because मुझे डर है कि मैं अरेस्ट होऊंगा, ठीक है? So in case of non-bailable offense, okay, you can apply for the same, and if it is on valid grounds, you get this anticipatory bail. So person, again I'm going to repeat, the court order that allows a person to be released on bail even before they are arrested. Typically एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, लाइक नॉट फॉर समथिंग वेरी ग्रेव लाइक मर्डर और रेप, ओके? सो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए तो एक प्रीएम्प्टिव मेजर है बिफोर इट हैपेंस, कि सतर्क रहने के लिए मैंने पहले किया है ये, ठीक है? सो दैट इज द केस, और ये अप्लाई होता है टू अ हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशंस, एंड ये डायरेक्शन देता है पुलिस को कि रिलीज कर दो इफ दे आर अरेस्टेड इन अ वाइल, ओके? नाउ ये कहां पे दिया है एंटिसिपेटरी बेल? दिस इज मेंशन इन द सीआरपीसी सेक्शन 438, ताकि अनजस्ट कोई अरेस्ट ना हो, okay, humiliate ना हो, like especially like you know the rich people and all, so that they are not arrested, okay, they don't face बेइज्जती and false accusation. इसके लिए पहले इनको लगता है कि ये ऐसा होगा, so they get this particular provision of anticipatory bail. Now there was this case which happened in 2024. The case का नाम है किरण versus
राजकुमार जीवीराज जैन। इन दिस पर्टिकुलर केस हम देखते हैं कि एक शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर है जिनका नाम है किरण। सो शी वाज असॉल्टेड विद आयरन रॉड, कास्ट अब्यूज, मोलेस्टेशन, ओके, मंगलसूत्र उनका लूट लिया, उनको धमकी दी कि उनका घर जलाया जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस बिकॉज व्हाई शी डिसाइड दैट शी विल नॉट वोट, ओके, एज डायरेक्टेड इन द असेंबली इलेक्शंस। तो इस केस पे ये विटनेस भी थे, बाई स्टैंडर्स एंड ऑल। इस केस में सेशंस जज ने रिजेक्ट किया था एंटिसिपेटरी बेल टू द पर्सन हु डिड दैट, ओके। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डायरेक्ट है, तो इसने एंटिसिपेटरी बेल देना मना कर दिया। नाउ यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या कहना था? बॉम्बे हाई कोर्ट विच इज द औरंगाबाद बेंच, इन्होंने ग्रांट किया कि नहीं, अलाउड है, एंटिसिपेटरी बेल अलाउड है कि ये कास्ट जो है ये इसका गलत यूज होता है ना, ये वोट्स के लिए भी यूज होता है, इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने बोला कि नहीं, एंटिसिपेटरी बेल कुछ गलत चीजों के लिए तुम यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हो किसी को कि अरे कास्ट के बारे में गलत चीज बताई है एंड ऑल ऑफ दैट। सो दो लोगों का यहाँ पे अपोजिंग एस्पेक्ट्स था। सो अपील कहां पे गया? अपील गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सो हम देखते हैं व्हाई इज एंटिसिपेटरी बिल बार्ड अंडर SC/ST एक्ट, मतलब क्यों एंटिसिपेटरी बिल नहीं दिया जा सकता है अंडर द SC/ST एक्ट दैट केम इन 1989। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 में आया था। So why are we excluding? According to section 18, यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल देना मना है। So ये जो section 438 जिसके बारे में हमने देखा, that is not applied in this particular SC/ST। फर्दर ये प्रोटेक्ट करता है विक्टिम्स को फ्रॉम इंटिमिडेशन, बिकॉज कास्ट जो है इट्स अ वेरी टची सब्जेक्ट, मिसयूज किया जा सकता है, विक्टिम्स को यहाँ पे धमका सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दे डोंट इंक्लूड एंटिसिपेटरी बेल। एंड ये तीन यहाँ पे केसेस हैं, ऑफ कोर्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैन जस्ट हैव अ लुक विच टॉक अबाउट की एंटिसिपेटरी बेल देना मना है। सो यहाँ पे कोर्ट का क्या स्टैंड है? कोर्ट सेज दैट ऑफेंसेस आर द एक्ट आर अ डिस्टिंक्ट क्लास टाइड टू सिस्टमिक डिप्रेशन। बार ऑन एंटिसिपेटरी बेल इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, मतलब जो बार मतलब हमने एंटिसिपेटरी बेल देना बना किया है दैट इज फाइन, बिकॉज ये आर्टिकल 14 और 21 के तहत ये इंपॉर्टेंट है टू प्रोवाइड इक्वालिटी अमंग ऑल एंड ऑफ कोर्स राइट टू लाइफ। सो करेंटली रिमेंबर एंटिसिपेटरी बेल SC/ST एक्ट के लिए नहीं है, इट्स बार्ड, यू कैन नॉट गेट, but for other offenses, minor offenses, you can still get an anticipatory bail. So this was the whole article about. Let's now proceed to the next one. इंडियन एक्सप्रेस में दिया है कि गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है एक सैनिटेशन ड्राइव। सो क्विकली लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द सैनिटेशन ड्राइव। इसको कहते हैं स्वच्छता ही सेवा। सो ये एक 9th सैनिटेशन ड्राइव होगा जो सितंबर 17 से लेके अक्टूबर 2। व्हाई वी डिस्कसिंग? बिकॉज कल के दिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का बर्थडे है। ओके, सो नरेंद्र मोदी सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुमारो, एंड टुमारो दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग स्वच्छता ड्राइव, सैनिटेशन ड्राइव। सो यहाँ पे जो landfill sites, you know what are landfill sites? Landfill sites are those sites जहाँ पे dispose करते हैं हम waste materials, जो dump बोलते हैं ना, the dump yard, right? So उसको क्लीन करने वाले हैं। सो दिस इज अंडर द स्वच्छता भारत मिशन अर्बन 2.0। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? क्विकली राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे टारगेट यही है कि जो पुराने हमारे लैंडफिल्स है इसको 2026 तक क्लीन करना है। सो दिस इज द टारगेट दैट वी सी, एंड दिस इंक्लूड्स बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। नाउ व्हाई इज इट कंप्लीटिंग फ्रॉम सितंबर 17 टू अक्टूबर 2 तक ये ड्राइव चलेगा? बिकॉज बहुत सारे बर्थडेज एंड बर्थ एनिवर्सरीज यहाँ पे आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम मोदी जी, वी ऑल्सो सीन दीनदयाल उपाध्याय who celebrates his birthday on September 25th, Mahatma Gandhi October 2nd, as well as Lal Bahadur Shastri October 2nd. तो ये था स्वच्छता ही सेवा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल एक कॉन्फ्रेंस था
ऑन women empowerment, एंड यहाँ पे हमारे जो लोकसभा के स्पीकर थे ओम बिरला, ही addressed the conference. So ये तिरुपति में था. तिरुपति is in आंध्र प्रदेश, and in this he said something important, so I would like to highlight क्योंकि यहाँ पे questions आ सकते हैं. So he said that हमारा जो women population specifically अगर हम political sphere की बात करें, ये अभी भी हम पीछे हैं. ठीक है. So currently we have only 14%, okay, less than 14 actually in Lok Sabha, but it is highest ever since independence. Okay. लेकिन ग्लोबल एवरेज की बात करो तो इट इज 26%, यानी कि दूसरे कंट्रीज में इट्स अबाउट 26%, इंडिया में इट्स अबाउट 14%, यानी कि विद रिगार्ड टू 543 में देयर आर ओनली अबाउट 74 पीपल दैट आर वुमेन एज कंपेयर्ड टू 543. So you see सिर्फ 14% है जहां पे women are part of it. Further हमने एक recently bill लेके आए हैं, okay, which is the Women Reservations Act 2023. Can you tell me what was the amendment called for this particular amendment that's called as Women Reservation Act? इसका amendment number आपको comment section में बताना है. So यहाँ पे it is delimitation के बाद ये लागू होगा. यहाँ पे 33% okay will be women, so that is our next target. 33% होना चाहिए, अभी हाफ भी नहीं है, right? Further अगर दूसरे assemblies के बारे में देखते हैं, state assemblies में the highest ever women are present in छत्तीसगढ़. 18% women महिलाएं MLAs हैं, okay, women MLAs हैं. Further हिमाचल प्रदेश में only 1 woman is an MLA, and in fact there is one state जहां पे एक भी नहीं है, जो है मिजोरम. So you can be asked these questions, okay, even though they are state related, अगर women के बारे में पूछा जा सकता है, so please note it down. Let's proceed to the next article and the last article of today, which is Project Cheetah के बारे में. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक नया घर बना रहे हैं for the cheetahs in the गांधी सागर वाइल्ड सेंचुरी, जो है चंबल रिवर के पास, and this is in मध्य प्रदेश, right? तो इसके बारे में हम देख रहे हैं कि एक फीमेल चीता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि वहां पे ब्रीडिंग और सब हो के we'll have a good population of cheetahs in the गांधी सागर. Quickly we will see about all of this now. चीता reintroduction कहाँ पे? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और ऑलरेडी अगर पहली बार कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द कूनो नेशनल पार्क. करंटली कितने चीताज इंडिया में हैं? इट इज 29, विच इंक्लूड्स कब्स एंड चीताज. 19 है, 10 चीताज है. इनफैक्ट we will see कैसे चीतास बहुत ही डिस्टिंक्ट है फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स. हम देखते हैं अदर बिग कैट्स में लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, जैगुआर्स एंड ऑल, चीतास रोर नहीं करते. सो दैट इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट चीतास. नाउ वी नो कि हमने जो चीतास है 2022 में अफ्रीका से लेके आए थे, बिकॉज 1952 में चीतास वर एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया. जो एशियाटिक चीतास हैं वो नहीं थे, ठीक है, बिकॉज ब्रिटिश ने खत्म कर लिए, हमारे महाराजाओं ने खत्म कर लिया. सो 22 तक हमारे पास चीतास नहीं थे. बट ये जो चीतास हम लाए हैं, याद रखना ये अफ्रीकन चीतास हैं, एशियन वाले नहीं. एशियाटिक चीतास जो है बस अभी ईरान में पाए जाते हैं और अभी भी कितने 12 कुछ होंगे. एंड रिमेंबर दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन एशियाटिक एंड अफ्रीकन चीतास ऑल्सो. बट याद रखना 22 में इनफैक्ट कल के दिन September 17th को हम लेके आए थे, because again, okay, मोदी जी's birthday. So we had bought African cheetahs from which place? हम लेके आए थे नमीबिया से. Okay, now apart from Namibia, हमने कहाँ से चीतास लेके आए हैं? We have cheetahs from South Africa and we have cheetahs from Botswana. ओके, और केन्या से भी बातचीत हो रही है, अभी तक नहीं आया है, ठीक है, दिस इज नॉट येट कम. तो ये तरी याद रखना है कि इनसे, इन जगहों से, इन कंट्रीज से हमने चीतास लेके आए हैं. फर्दर इवन बिकॉज मोदी जी हैज गॉन टू नमीबिया रिसेंटली, है ना, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है. फर्दर कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि रिसेंटली मोदी जी जब वो 5 नेशन टूर में गए थे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अवार्ड जहां पे नमीबिया उनको दिया है, द हाईएस्ट ऑर्डर, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय नमीबिया? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके,
So, हमने चीतास इंट्रोड्यूस किया था 2022 में rejuvenating system and enhancing biodiversity के लिए, further to ensure that we have a thriving population of cheetahs as well. इसको implement करता है NTCA, which is the National टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। याद रखना, टाइगर कंजर्वेशन चीता को इंप्लीमेंट कर सकता है, सो दैट कैन बी कंफ्यूजिंग। एनटीसीए करके है जो 2005 में आया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फर्दर दूसरे कौन से बॉडीज हेल्प करते हैं? दैट्स मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एंड इसका टेक्निकल असिस्टेंस देता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। So ये था with regard to the cheetahs. Let's see the difference between the cheetahs and the protection status. So cheetahs are vulnerable. The Asiatic cheetahs की बात कर रहे हैं हम। Schedule 2 में आता है of the Wildlife Protection Act and Appendix 1 of CITES, यानी कि आपको अगर cheetahs को migrate करना है, you need to have proper protection, you need to have proper permissions before you transfer it from one place to another. जैसे recently एक सुना था कि कोई बैंकॉक से आया था and he got a lot of these endangered kind of species, exotic species from Afghanistan. Bag में लेके आया है, you know, there are like tortoise and you can say those lizards and all of that. अभी उसको वापस वो जो species लेके आया है वापस उसको भेजा जाएगा, ठीक है? So that is, and that person is detained as well. So अगर आप ऐसे ही स्मगल करते हो then you can be detained, तो proper rules and regulations के साथ ही आप लेके आ सकते हैं ये species. Can you tell me when is Cheetah Day in the comment section? Use the comment section to answer when is Cheetah Day celebrated. Further African और Asiatic cheetahs का difference देखते हैं। ये अफ्रीका में पाया जाता है as the name suggests, whereas this is mainly limited only to Iran. इंडिया में भी थे 1952 में, इंडिया में खत्म। So only 12 individuals critically endangered है यहाँ पे, whereas यहाँ पे it is vulnerable. Okay, how are they different physically? ये larger रहते हैं, larger build, robust neck and legs, whereas these are more slender, more smaller. ठीक है, so these are larger, these are little smaller, denser coat है, whereas these are very light. Okay, light fawn, extra fur on the neck, तो ये थोड़ा अलग है दिखने में. That is the difference between the two. So this is all with regard to today's daily news analysis, जहाँ पे बहुत सारे हमने interesting articles देखे. I hope you enjoyed as much as I did. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.